Hello students, how are you all? I hope you all are well and good. We have to learn here super senses, right? In human beings, we have senses. Similarly, in animals also have a senses. First, we have to revise the unit. पहले मैं एक बार यूनिट रिवाइज कर देती हूँ. Then we discuss about the word meanings. हमने we learn about the senses, animal senses, right? How do animals identify or recognize the other animals? Their sounds also. We have to learn also sounds. Animals sounds. How do they alert to other animals by earthquake, storm, or dangerous? Right? We learn also which animals, means so many animals are sleeping in different times, right? So many animals are different, 8 hours, 4 hours, 17 hours, 18 hours during season wise, right? During the season they change their sleeping times. Now, next is we have to see also their food. We have to see also their food, what they eat, right? Here is a word meanings about related our units. So here is a first is a whiskers. जैसे मैंने बताया था in tigers and lions, so many animals have whiskers. Whiskers means hair growth near the mouth or nose of some animals. Hair growth. हेयर ग्रोथ, जो भी एनिमल्स होते हैं उन सभी को हेयर्स होते हैं. कहाँ पे होते हैं वो? माउथ और नोज. माउथ और नोज के नियर, माउथ और नोज के पास उनको क्या होते हैं? हेयर्स ग्रोथ. वहाँ पे वो हेयर्स ग्रोथ होते हैं उनके. तो उसको क्या बोला जाता है? whiskers. And whiskers are very sensitive. Some animals are active with their whiskers. तो whiskers बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, उनको तुरंत ही वो एक्टिव कर देते हैं by the in any situations, right? Second is a hunter. Second is hunter. Hunter means you know very well. Hunter means शिकारी. Hunter means शिकारी, जो एनिमल्स का शिकार करते हैं. Here is a person who chases wild animals for food or sport or commercial profit, right? जैसे कि मैंने जब यूनिट पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे एनिमल्स जो हमारे देश में डिक्रीज होते जा रहे थे, उसका ये मेन रीजन है. Why they are decreases? So this is the reasons. Hunters are a person who chases wild animals. जो जंगली एनिमल्स है, जो जंगल में रहते हैं वो एनिमल्स है, उनको फूड के लिए वो लोग उनका शिकार करते हैं. और कमर्शियल प्रॉफिट मीन्स दे सेल देयर स्किन, दे सेल देयर बॉडीज, दे सेल देयर नेल्स, टीथ ऑल्सो, राइट? So that is called the hunter. Here is a poacher. Similar, both are similars. A person who hunts animal illegally. A person who hunts animals illegally means जो लोग होते हैं वो एनिमल्स को इलीगली एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाते हैं वो, राइट? और कोई तो more animals are used in also circus also, right? So ये लोग जो होते हैं वो इलीगली प्रोसेस से एनिमल्स का यूज करते हैं. That's why the animals are decreases in our country. Here is a rustling. What is the meaning of rustling? So the sound caused when dry leaves or papers move. What is the meaning of rustling? Sound caused but when dry leaves, जो ड्राई लीव्स पे हम जब हम
हमारे पैर रखते तो इमेजिन करना और सुनना वो वॉइस कैसी आती है, राइट। और पेपर्स मूव, जब बहुत सारे पेपर्स गिरे हुए होते हैं और जोर से हवा आती है तो वो पेपर्स की आवाज कैसी होती है, दैट इज कॉल्ड द रसलिंग। नेक्स्ट इज प्रे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रे? एन एनिमल दैट इज द फूड ऑफ अनदर एनिमल। एन एनिमल दैट इज द फूड ऑफ अनदर एनिमल है, एक एनिमल है जो दूसरे एनिमल्स के लिए फूड का इस्तेमाल करता है, दैट इज कॉल्ड द प्रे। स्निफ, जैसे कि मैंने बताया था डॉग, एक डॉग दूसरे डॉग को कैसे रिकॉग्नाइज करता है? बाय देयर स्मेल्स और बाय देयर यूरिन स्मेल। एक दूसरे की यूरिन पहचान के वो डॉग रिकॉग्नाइज करता है कि यहाँ पे दूसरा डॉग ऑलरेडी आ चुका है। देन वाइब्रेशंस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वाइब्रेशंस? कंटिन्यूअस क्विक और स्लाइड शेकिंग मूवमेंट। कंटिन्यूअस क्विक स्लाइड शेकिंग मूवमेंट, तुरंत ही वो अपनी जो मूवमेंट्स होती है वो तुरंत ही अपनी मूवमेंट्स वो क्विकली चेंज कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड द वाइब्रेशंस, राइट। ये सभी वर्ड्स मीनिंग है यूनिट अवर related our units. So this is the word meanings. You have write to 5 times and this is the in exams question for 2 marks. Define the words. तो ये जो वर्ड्स होते हैं ये आपको पूछे जाते हैं एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए। तो डिफाइन द वर्ड्स के हिसाब से क्वेश्चन आता है, तो ये आपको लर्न करना जरूरी है। आई होप यू हैव अ टेक्स्ट बुक। आपके पास जो टेक्स्ट बुक है उसमें से आप यूनिट रीड कर सकते हो एंड मोर देन इंफॉर्मेशन अबाउट द एनिमल्स सेंसेस। जैसे हमारे सेंसेस है वैसे ही एनिमल्स के सेंसेस होते हैं और वो मोर देन स्ट्रॉन्ग देन ह्यूमन सेंसेस। जो एनिमल्स के सेंसेस है वो ह्यूमन के सेंसेस से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं। इस तरह से हमने ये भी देखा था कि हमारे कंट्री में है जो वो एनिमल्स कम होते जा रहे हैं, तो कौन हमारे एनिमल्स को सेव कर रहा है? सो नेशनल पार्क। तो आप अगर बहुत सारे नेशनल पार्क्स, आपको एक लिस्ट बनानी है पार्क्स की जो आप जानते हो, राइट। हम बहुत बार जू में भी जाते हैं, जू में भी हम बहुत सारे एनिमल्स देखते हैं। अभी जू में भी बहुत कम एनिमल्स हो चुके हैं, राइट। तो इसकी वजह क्या है? तो इसकी वजह है हंटर्स एंड पोचर्स, राइट। ये उनकी वजह है कि जो एनिमल्स हमारे डिक्रीज हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये आपको नोटबुक में लिखना है 5 टाइम्स। वर्ड मीनिंग आपको लिखने हैं 1 टाइम्स। ये जो वर्ड्स है, सिर्फ ये जो वर्ड्स है, तो ये आपको न्यू वर्ड्स करके 5 टाइम्स वर्ड्स लिखने हैं। जो भी अंडरलाइन किए हुए हैं वो आपको 5 टाइम्स लिखने हैं और ये वर्ड मीनिंग है वो 1 टाइम में लिखना है। बट यू लर्न ऑल दीज वर्ड मीनिंग्स, राइट। I will give a test, right, on the word meaning. So you have to learn compulsory. और बहुत सारे बच्चे हैं, so many students are not saying their homework. So please I request all the students you have write all the points in your notebooks and all the homework you send respective teachers. Okay. Thank you and have a nice day.